Hello everyone. We are doing chapter number 12, Biotechnology and its applications. This is the second video of the chapter, class 12, Biology. In this video, we are going to cover the following topics: transgenic animals, ethical issues, and in the end, we will discuss 20 questions related with the topic, and also there is an MCQ test for you. You can try this test. Let us see what are transgenic animals first. These are the animals whose genome has been altered by introduction of an extra foreign gene by manipulation. What do you mean by this? There is a rabbit in front of you. पिक्चर है रैबिट का. इस रैबिट की बॉडी में हमने एक फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है और अब इस रैबिट का जीनोम चेंज हो गया, ऑल्टर हो गया, एंड नाउ दिस रैबिट इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक रैबिट और ट्रांसजेनिक एनिमल. सिमिलरली बहुत सारे एनिमल्स बनाए गए हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक रैट्स, पिग्स, शीप, cows and fishes, and over 95% of the transgenic animals are mice. How these transgenic animals are benefited to us? First, to study the regulation of genes on normal physiology and development. Second, to study the contribution of genes in the development of a disease. Third, for making biological products. Fourth, for vaccine safety testing. And fifth, chemical safety testing or toxicity testing. Let us start with first. To study the regulation of gene on normal physiology and development. हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट में जीन का क्या रोल है? हाउ जीन्स रेगुलेट आवर फिजियोलॉजी एंड आवर डेवलपमेंट. This can be studied with the help of transgenic animal. Let us see an example of it. Insulin-like growth factor. What is this factor? It is a peptide mainly secreted by the liver, and when the liver secreted in response to the endocrine growth hormone. Growth hormone is released from the pituitary gland. ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया and this will act on the liver, and now liver will release insulin like growth factor. What is the function of this factor? It helps to promote normal bone and tissue growth and development. Basically इसका रोल growth and development में है. तो इस फैक्टर का फंक्शन क्या है, इस फैक्टर का रोल क्या है, इसको स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं. क्या प्रोसेस लेंगे इसके लिए हम? फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 देखिए. इंट्रोड्यूस जीन्स दैट ऑल्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर. हमने एक जीन डाल दिया है एनिमल की बॉडी में जो इस फैक्टर के फॉर्मेशन को चेंज कर देगा, ऑल्टर कर देगा. अब ये फैक्टर ठीक से नहीं बनेगा या नहीं बनेगा एट ऑल. आफ्टर दिस पॉइंट नंबर 2 देखिए. देन बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आर स्टडीड. अब इस एनिमल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा है वो हम स्टडी करेंगे. ओके. पॉइंट नंबर 3 पर आइए. दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी, और हमें बिल्कुल क्लियर कट इसका रोल हमारी बॉडी के ऊपर क्या है पता चल सकता है. सो दिस इज हाउ दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड फॉर functioning for the study of regulation of genes on normal physiology and development. Second, to study the contribution of genes in the development of a disease. कोई भी डिजीज किस तरह से डेवलप होती है, क्या उनके ऊपर जीन्स का कोई रोल है, क्या कोई कंट्रीब्यूशन है जीन्स का डिजीज की डेवलपमेंट में, इसकी स्टडी के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज करते हैं. और ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हमें जीन्स का कंट्रीब्यूशन क्लियर कट पता चल सके. ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन्ड टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज. पॉइंट नंबर बी पर आइए. दीज ट्रांसजेनिक मॉडल्स हेल्प अस टू इन्वेस्टिगेट न्यू ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन डिजीजेज. इनसे हमें बहुत एडवांटेज है, हमें ये भी पता चलता है कि हम ट्रीटमेंट कैसा करें डिजीज का.
For example, transgenic models for many human diseases are made, like cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer's. Alzheimer's एक ब्रेन डिजीज है जिसमें ब्रेन के सेल्स डीजनरेट होने लगते हैं और मेमोरी लॉस होने लगती है. So by the study of these transgenic animals, we are able to find the cause of the disease and the treatment of the disease. Third, for making biological products. Transgenic animals are used to produce biological products. इसमें क्या किया जाता है, हम एनिमल्स की बॉडी में जीन्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए कोड करता है और वो प्रोडक्ट हमारे को मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बनाया गया जो यूज किया जाता है एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट में. एम्फीसीमा इज अ डिजीज ऑफ अ लंग. इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जो ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी यूज किए गए हैं. देयर इज वन मोर प्रोडक्ट. इन 1997 रोजे, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, आपके सामने पिक्चर है इस काउ का, प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क. कौन सा प्रोटीन था इसके अंदर? ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन. और अमाउंट कितना था? 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क. एंड इट इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन द नेचुरल काउ मिल्क. So this is again a biological product. Name of the product is human alpha lactalbumin, which is present in the milk of a rosé cow, which is first transgenic cow made in 1997. Vaccine safety testing. Fourth point है ये. Transgenic mice are used to test the safety of the polio vaccine. पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी टेस्ट करना है तो हमने ट्रांसजेनिक माइस का यूज किया. And if it is reliable, they can replace the use of monkeys to test the safety of the vaccine. और after monkeys हम इसको try कर सकते हैं in the human beings also. So transgenic animals are used to test the safety of the vaccine. Fifth point, chemical safety testing. Whether any chemical is safe for the human use and whether it is a toxic or not. क्या करते हैं इसके अंदर? सम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैरी जीन्स. कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ऐसे जीन्स होते हैं जो एनिमल को टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं. और अब इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में जब हम टॉक्सिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनके इफेक्ट्स हम स्टडी कर सकते हैं. ओके, सो सम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैरी जीन्स which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animal, and when they are exposed to the toxic substances and the effects can be easily studied. Now come to ethical issues. Genetic modification may cause unpredictable result. इतने सारे हम जीन्स में चेंजेस कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की, इतने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हम बना रहे हैं, तो कई बार इसके लिए अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आ जाते हैं हमारे सामने. और अगर इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दें तो इट मे बी हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम ऑल्सो. इसको चेक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया. इंडियन गवर्नमेंट हैज सेटअप एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो डिसीजन लेती है अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द GM रिसर्च, की जो रिसर्च चल रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या वो वैलिड है, क्या जो ऑर्गेनिज्म बने वो सेफ है फॉर द पब्लिक. सो फॉर टेकिंग दीज डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन GEAC. What is biopiracy? It is the use of bioresources by multinational companies. कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जो बायो रिसोर्सेज का यूज कर रही हैं विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न. कोई ऑथराइजेशन नहीं है उनके पास एंड दे आर यूजिंग अवर बायो रिसोर्सेज. दिस इज कॉल्ड बायोपायरेसी. सर्टेन कंपनीज गॉट पेटेंट फॉर प्रोडक्ट्स. कुछ कंपनीज ने तो पेटेंट भी ले लिया है
कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, and technology that make use of the genetic material, plants, etc. that have been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a country. हमारे फार्मर्स यूज कर रहे हैं, हमारे पर्सन्स यूज कर रहे हैं हमारे देश के, और इसका पेटेंट राइट ले लिया दूसरी कंपनीज ने. फॉर एग्जाम्पल है बासमती राइस, हर्बल मेडिसिन लाइक टर्मरिक एंड नीम. आइए बासमती राइस के बारे में पढ़ते हैं हम, बायोपायरेसी कैसे हुआ. बासमती राइस का एक यूनिक एरोमा है और बहुत अच्छा फ्लेवर है, और इंडिया के अंदर 27 वेराइटीज ऑफ बासमती मिलती हैं, और 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया आर देयर. ओके, बट अब कहानी शुरू हुआ इन 1997. एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस का पेटेंट राइट ले लिया, और अब बासमती राइस को बेचने का, सेल करने का राइट किसके पास था? अमेरिकन कंपनी के पास. और डिराइव कैसे किया उन्होंने इस बासमती राइस को? इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विद द सेमी ड्वार्फ वेराइटी एंड क्लेम्ड एज अ नोवेल्टी. और उन्होंने ये क्लेम किया ये तो नोवेल है, न्यू है, हमारा है ये. और अब आज की डेट में हम अपने बासमती राइस को बासमती कहकर नहीं सेल कर सकते हैं. बासमती का पेटेंट राइट मिल चुका है अमेरिकन कंपनी को इन 1997. दिस इज द बायोपायरेसी. सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज. द डेवलपिंग एंड द अंडरडेवलप्ड वर्ल्ड हैव रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज. तो हमारे पास तो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है और बहुत नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है. तो इन सबको सिक्योर करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए. सो इट हैज़ टू डेवलप लॉज. क्यों बनाए गए? ताकि अनऑथोराइज एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए बायो रिसोर्सेज का और हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज का. इंडियन पार्लियामेंट हैज क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल. क्या अमेंडमेंट हुआ इसमें? किस चीज के लिए उन्होंने कंसीडर किया? दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू कंसीडरेशन लाइक इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव. सो इट वाज मस्ट टू मेक द लॉज, ताकि अनऑथोराइज एक्सप्लॉयटेशन हमारे बायो रिसोर्सेज का, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज का ना हो सके. जिस तरह से बासमती राइस चला गया, ऐसे और भी चीजें ना जा सकें. Now, let us discuss some questions. Question number 1. What are transgenic bacteria? Illustrate using one example. अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसके 2 पार्ट्स हैं. तो जब एक पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंड पार्ट के आंसर को न्यू लाइन से स्टार्ट कीजिएगा. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द presentation of the answer. So what are transgenic bacteria? When a foreign gene or genes are intentionally introduced into the genome of a bacteria, the latter becomes transgenic. और एग्जाम्पल क्या लोगे इसका? ई कोलाई का लेंगे एग्जाम्पल, जिसमें हमने इंसुलिन बनाया था, ह्यूमन इंसुलिन. 2 DNA sequence A and B chains of human insulin were introduced into the plasmid of E. coli. The transgenic bacteria start producing insulin chains. This is the example of transgenic bacteria, E. coli. Question number 2. Name any 2 conventional methods of diagnosis of a disease. अब आप बोलोगे ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ये जो आंसर है इसका, ये बहुत एक ब्रैकेट के अंदर आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज टू मिस दिस, skip this. So don't skip, don't miss any line of NCERT book. Answer is serum analysis and urine analysis. Question number 3. What is alpha-1 antitrypsin? It is a recombinant protein produced in transgenic animals and it is used to cure emphysema. Question number 4. A multinational company outside India tried to sell new variety of turmeric without prior patent right. What is such act referred to?
Biopiracy. Question number 5. For which variety of Indian rice was patent filed by a US company? अब most of the students will write only basmati rice. No. आंसर क्या लिखोगे इसमें? For a rice variety produced by crossing Indian basmati variety with the semi dwarf variety. जब ये न्यू वैरायटी जो मिला था क्रॉस करने के बाद, उसके लिए पेटेंट फाइल किया था इन्होंने. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. गिवन बिलो इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. एक आपके सामने डीएनए मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. पोलैरिटी भी याद रखना है और सीक्वेंस भी याद रखना है. अब इससे हमें सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनाना है. आरएनए बनाने से पहले हमें सेंस और एंटीसेंस डीएनए तैयार करना होगा. सेंस दिया हुआ है, इसका एंटीसेंस डीएनए बना लीजिए पहले. स्टार्ट विद द 3 प्राइम एंड. ओके. A combined with T, so sequence will be T A C C C C G A G. 3 prime to 5 prime. This is antisense DNA. अब आपके पास सेंस डीएनए भी है, एंटीसेंस डीएनए भी है. अब इन डीएनए मॉलिक्यूल से दोनों थ्रेड से आप बनाइए आरएनए. सेंस एंड एंटीसेंस. सेंस डीएनए से एंटीसेंस आरएनए बनेगा, एंटीसेंस डीएनए से सेंस आरएनए बनेगा. रिमेंबर दिस. ओके. सेंस डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. एंटीसेंस आरएनए बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम. और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको कि ए के साथ यू कंबाइन होगा, यूरेसिल, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है. ओके. पोलैरिटी याद रखिए, कौन सा बेस लगेगा वो याद रखिए. सेंस से एंटीसेंस बनाना है. ओके. तो फर्स्ट वाले से लास्ट वाला बनेगा और सेकेंड एंटीसेंस से थर्ड सेंस वाला बनेगा. ओके. सो जो बीच में दिया हुआ है एंटीसेंस डीएनए है, उससे सेंस आरएनए बनाइए. ए यू जी 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 सी यू सी इज द आंसर. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. मैच द कॉलम. अब आप बोलेंगे कि मैच द कॉलम से हमें क्या फायदा होगा. इस मैच द कॉलम से आपको इमीडिएटली यू विल बी एबल टू लर्न 5 क्वेश्चंस एट वन गो. रोजे, human alpha lactalbumin, TI plasmid, Agrobacterium tumefaciens, RNAi, Melodium incognitia, ELISA, antigen antibody interaction, transgenic mice, polio vaccine safety. Okay. Question number 8. Again match the column. ए जीन थेरेपी के साथ क्या कंबाइन होगा. एडीए डेफिशिएंसी, कॉटन बोलवॉर्म, लेपिडोप्टेरन, एली लिली, ह्यूमन इंसुलिन, बासमती राइस, बायोपायरेसी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फिसीमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 9. अ बॉय हैज बीन डायग्नोज्ड विद एडीए डेफिशिएंसी. Suggest any one possible treatment. One बताना है आपको. There are 3 in front of you. Any one you can write. Gene therapy, enzyme replacement therapy, bone marrow transplantation. Question number 10. State the cause of adenosine deaminase enzyme deficiency. क्या cause क्या है इस deficiency का, adenosine deaminase enzyme deficiency का? It is caused due to the deletion of a gene coding for enzyme adenosine deaminase. Question number 11. Expand the following and mention one application of each. जितनी भी abbreviations आपकी एनसीईआरटी की बुक में हैं, प्लीज उनको लर्न करिए, एक्सपैंड करना सीखिए उनको. यहाँ पर आपको 2 टर्म्स दिया हुआ है. पीसीआर, इट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे. पीसीआर का यूज क्या है? To detect HIV infection or to detect mutations in genes in suspected cancer patients. ELISA का यूज क्या है? To detect HIV infection. Question number 12. Name the first transgenic cow developed. Rose. Explain the improvement in the quality of the product produced by it. क्या improvement हुआ था जो product बना इस cow के through? The milk contained human protein
अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर था, विच इज न्यूट्रिशनली मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बेबीज. Question number 13. What is the significance of the process of RNA interference in eukaryotic organism? It is a cellular defense mechanism in all eukaryotic organisms. Question number 14. Write the possible source of RNA interference gene. दो sources हैं, infection by virus having RNA genome or mobile genetic elements called transposons that replicate via an RNA intermediate. क्वेश्चन नंबर 15 to 20 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, सिंगल वर्ड आंसर हैं इनके. इन RNAi, the silencing of messenger RNA is carried out by using double-stranded RNA. Question number 16. The Bt toxin does not kill the bacterium producing it because it is produced in an inactive state. Question number 17. The site of production of ADA in the body is lymphocytes. Question number 18. Dash of human insulin is removed during maturation process. C peptide, ये मालूम है आपको, इंसुलिन में 3 चेन्स हैं, A चेन, B चेन एंड C पेप्टाइड. जब मैच्योर होता है इंसुलिन तो C पेप्टाइड हट जाता है एंड प्रॉपर इंसुलिन मिलता है विद द A एंड B चेन. क्वेश्चन नंबर 19. Using dash vectors, nematode specific genes are introduced into the host plant, Agrobacterium. Question number 20. The protein coded by the gene CRY1AB provides the resistance to corn borer. So that's all for today. The chapter is complete. Do the test which is given in the box in the form of MCQ. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel for getting the information about my new video.